أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا رسل الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم، میرا نام طاہر نواز ہے اور میں رنتوا فارماسیوٹیکلس کوتا ہے، جس کا سلوگن ہے قدم قدم فارمر کی اسٹرنتھ۔ اس طرح سے آپ تمام آنے والے مہمانوں کو دل کی تمام گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگ اتنی گرمی میں تشریف لائے محمد آصف کی دعوت پہ اور ہمارے اس پروگرام کو چاند لگائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، دوستوں کا۔ آج سے چند 100 سال پیچھے چلے جائیں تو پیغام رسانی کا جو دور تھا، جو پیغام پہنچایا جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے۔ ایسے ہے نا بزرگوں، گھوڑے پہ پیغام بھیجا جاتا تھا خوشی کا یا فوتی کا، تو آگے ایک اور گھوڑا لگا ہوتا تھا 100 کلومیٹر یا جہاں پہ، تو وہ پیغام آگے لے کے جانا تھا، تو 4 دنوں میں 4 مہینوں میں پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا تھا۔ ایسے ہے نا جی۔ لیکن پھر اور تبدیل ہوا، پھر زندہ داری اور انسان نے دور جدید میں قدم رکھا، اور اس کے بعد یہ ویل بنا، ویل کی ایجاد ہوئی، پہیے کی، اور گاڑیاں بنی، سائیکل بنا، موٹر سائیکل بنا، انجن بنے، بسیں بنی، کاریں بنی، اور پھر آخر کار جہاز بھی بنا۔ تو پیغام رسانی آسان ہوتی گئی، اور اس کے بعد انسان نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی کہ جس کی وجہ سے بہت ساری نسل تبدیل ہو گئی، دنیا حیران رہ گئی۔ یہ جو موبائل فون ہے، اس کی وجہ سے یہ چند سیکنڈ میں 7 سمندر پار پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہے نا جی۔ میرے ساتھ دیں گے نا جی؟ میرا ساتھ کون کون دے گا دوست؟ چند منٹ میں ہاتھ کھڑا کریں جی۔ ہاں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، بہت شکریہ۔ تو آج سے اگر 100 سال پہلے جو فوت ہوا ہے اچانک وہ قبر سے اٹھ جائے اور ہم اسے کہیں کہ اے لو جی ہے موبائل فون، سعودی عرب بیٹھے بندے نال گل کر لو، وہ منے گا؟ وہ نہیں منے گا۔ اسی طرح آج جو ٹیکنالوجی میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں، دماغ تو قبول نہیں کرتا لیکن دل قبول کرتا ہے، اور پھر جب ہم کر گزرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اتنا منافع ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے، ایسے کاروبار میں جو ہم نے ضائع کیا ہوا ہے، جس پہ ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں دی، جانوروں پہ۔ تو کیا یہ بات آپ سننا چاہتے ہیں 10 منٹ کی؟ تو ٹھیک ہے، تھینک یو۔ صرف موبائل فون 10 منٹ کے لیے میری ریکویسٹ پہ سائلنٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے گھر میں جو جانور موجود ہیں، آپ لوگوں نے جو جانور خرید کر لانے ہیں، وہ بھی سب سے پہلے تو ان کی ویکسینیشن کروانا ضروری ہوتا ہے۔ حفاظتی ٹیکے جات کا عمل، وہ انسانوں میں بھی لگتے ہیں، ہم انسانوں میں بچوں میں بھی لگتے ہیں ویکسینیشن، حفاظتی ٹیکہ جات، اور جانوروں میں بھی لگتے ہیں۔
हिफाजती टीके जात का मकसद ये होता है कि बीमारी आए ही ना, जब बीमारी आ जाती है तो हिफाजती टीके फिर लगते नहीं, फिर इलाज होता है। इसलिए हिफाजती टीका पहला अमल है। आपके घर में जो जानवर खड़े हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हिफाजती टीके हैं, 3 बता देता हूं सिर्फ। एक है गल घोटू, बड़ी खतरनाक बीमारी है, एक है मुंह खुर और एक है चौड़े मार। ठीक है, इन 3 बीमारियों में जानवर को बुखार हो जाता है, खाता पीता नहीं है। ठीक है, गल घोटू में सांस नहीं आता। ठीक है, मुंह खुर में मुंह में आबले, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, चल नहीं सकता। टेम्परेचर बुखार नॉर्मल तो 102 होता है जानवर का, लेकिन 105-6 तक चला जाता है तो जानवर जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए हिफाजती टीके जात लगाएंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। ठीक हो गया। तो दूसरा अमल, पहला अमल हिफाजती टीका जात, दूसरा अमल मोहतरम आपका हो गया डिवर्मिंग। डिवर्मिंग कहते हैं पेट में जो कीड़े होते हैं, जो सब्ज चारा हम खिलाते हैं ना, कौन कौन सब्ज चारा बरसीन ज्वार खिलाता है जानवरों को? आप में से खिलाते हैं ना जी। कितने ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 5 से ज्यादा जानवर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ, और किनके पास 10 से ज्यादा जानवर हैं? उनके लिए स्पेशल कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर, कोई इस किस्म की होगी। किसी के पास 20 जानवर हो, हाँ 20 जानवरों से ज्यादा भी बैठे हैं, पीछे भी बुजुर्ग बैठे हैं। तो मैं बता रहा था कि जब सब्ज चारा जानवरों को डालते हैं तो उसमें सब्ज चारे में कीड़ों के अंडे होते हैं, तो अंडे पेट में चले जाते हैं जो कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी खुराक तो बनाते नहीं, तो वो क्या करते हैं, जानवर का खून चूसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर कमजोर होना शुरू हो जाता है, बढ़ने की बजाय कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो यार 2 जणियां दी दौड़ लवाइए, एक दे पैरा चिट्टा बन दईए तो जीत जाएगा? कदे भी नहीं जीत सकता। इसलिए जब तक उनके पेट के कीड़े खत्म नहीं होंगे वो जानवर फले फूलेगा नहीं, और जो जानवर फले फूलेगा नहीं वो आपको मुनाफा दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने हर 3 महीने बाद जानवर की डिवर्मिंग लाजमी करवानी है। ठीक है, डिवर्मिंग तो वो यहाँ पे मौजूद होगा, आपको वो बता दिया जाएगा कौन सा डिवर्मर यहाँ पे मौजूद है। पेट के कीड़ों मारने वाली दवा भी उसे बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा अमल है वो उसके चिच्चड़ खत्म करने हैं। जिल्द पे चिच्चड़ होते हैं ना जी, जब तक चिच्चड़ रहेगा, अड्डी दे विच कंडा लगा होवे तां बंदे नूं सुकून आउंदा है। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਡੀ 'ਚ ਕੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। जब तक चिच्चड़ खत्म नहीं करांगे ना उदों तक ਤੁਹਾਡਾ जानवर सेहतमंद। चिच्चड़ वाला टीका लगाएंगे, आपको चमड़ी वाला टीका लगाएंगे, चिच्चड़ उसके खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जानवर हो जाएगा इट्टां तो वेला, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ इट्टां ਲੈ गईयां, ਹੁਣ जानवर दौड़न ਲਈ तैयार है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने तीसरा अमल है न्यूट्रिशन का। अब आपने उसको न्यूट्रिशन पे लाना है, खुराक पे लाना है। अगर ये 3 अमल नहीं करेंगे तो खुराक देने से भी कोई फायदा हासिल कितने दोस्त ने जिन्हें जिम्मेदार है काश्तकारी, ये फसलां उगाते ने, कमान गन्ना, हाथ खड़ा करो जरा, मैंने पता लगे मैं भी जिम्मेदार है ना जी। अगर जड़ी बूटियां उगे होण कमान दे विच, तुसी स्प्रे ना करो, उवें खाद पा दिओ ते खाद सारी कमान नूं लगेगी, जड़ी बूटियां नूं भी लगेगी, असर नहीं होना, वो वाला फायदा नहीं होना। अगर इत्थे रंग करना होवे, पेंट करना होवे, इनू असीं साफ ना करिए, दीवार नूं साफ ना करिए, एवें पेंट ला दईए तो डिग जाएगा, वो सोना नहीं लगना। इसलिए पहले सफाई क्लींजिंग जरूरी है जानवर की। उस तो बाद तुसी न्यूट्रिशन दोगे तो जानवर फौरन पिक करेगा और फौरन जानवर नूं असर होएगा, और जानवर जेड़ा साल दा सफर है वो 3 महीने करेगा, जेड़ा मैं तुहानू जहाज दी ते टेलीफोन दी मिसाल शुरू च दित्ती। ठीक हो गया। काफी किसान हजरात जेड़े ने वो बच्चे पालते ने, तुहाडे विचों भी कोई पालदा है जी? हाँ, बच्चा पालन वाले दोस्त बैठे ने, वो की करते ने 1 साल पालते ने या 1 साल तो भी ज्यादा 2-3 महीने पालते ने, एवें है ना जी। 2 महीने 3 महीने पालन वाले भी मौजूद ने। ठीक है, इन्हां तो पुछो कि 2-3 महीने दे विच वो प्रॉफिट ले लेंदे ने, जेड़े अक्सर 90% साडे रिवायती किसान, साडे दोस्त, साडे भाई साल या 15 महीने पाल के भी हासिल नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ वजह की जदीद तरीन खुराक आ गई, जदीद तरीन चीज़ां आ गईयां, जिहदे विच सब तो पहले साडा एक मिनरल है मिल्क एंड बटर। अगर तुसी ये मज्जां नूं पाओगे, 100 ग्राम रोजाना दी डोज है, इहदे विच 8 तो 10 किस्म दे मिनरल्स ने, विटामिन्स ने, जिहड़े जानवर दी तबीयत लई बहुत जरूरी ने।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਚੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਵਤ ਮੁਨਾਫਿਅਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਬਟਰ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, 10%। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵਿਟਾ ਹਮ ਸੀ। ਵਿਟਾ ਹਮ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚ 3 ਲੀਟਰ ਚ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਚ ਵੀ ਕੈਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ 100 ml ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਰਪ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਸਜੀਪੀਟੀ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੁੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਬਲਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ठीक है। विटामिन सी एक बेहतरीन तोहफा है गर्मियों का और बहुत अच्छा पूरे पाकिस्तान है, जिसकी बहुत ज्यादा साड़ी सेल है। लेकिन असी अज इत्थे चीज़ां वेचण नहीं आए। काशिफ नवाज सिर्फ तुहानू ये दस्सण आया है कि तुहाडे घर च जिहड़े जानवर मौजूद ने उन्हां जानवरां तो तुसी 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हो अगर तुसी इन्हां चीज़ां ते अमल कर लो। जानवर नू साए ते बन्नो, अगर तलाब है तो वो भी अच्छी गल है, वरना उन्होंने एक टाइम नहलाओ और शावरिंग सिस्टम भी ला लो सोलर प्लेटा नाल। उस दे इलावा तुसी विटामिन सी दिओ ते जानवर दा टेंपरेचर एवें लगदो 45 की बजाय 25 ते आ गया ते दुध च भी इजाफा होएगा। ते जदों मिल्क एंड बटर दिओगे तो दुध मोटा मलाई भी आएगी और दुध इजाफा भी होएगा। ठीक हो गया। दोबारा गब्बन भी टाइम ते हो जाएगा। ये तो मिल्क एंड बटर न्यूट्रिशन दे विच गल कर रहे हैं आपां। इस दे इलावा साडे कोल एक प्रोडक्ट है बीफ गोल्ड। ये साडे कोल 1 लीटर 3 लीटर 20 लीटर कैन दे विच मौजूद ने। 20 लीटर कैन भी इत्थे अवेलेबल है जिथे तुसीं तशरीफ फरमाओ। आसिफ साहब दी मेहरबानी नाल सिस्टम इत्थे आया है और ये बड़ी नेमत है इत्थों दे लोगां दी खुशकिस्मती है कि सिस्टम हरनौली दे विच आसिफ भाई तुहाडे लई लैके आए ने। वरना ये लोग इत्थों मुल्तानों मंगाउंदे ने, कोई बसां ते राती 2 वजे लै रहा हुंदा है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬੀਫ ਗੋਲਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਬੀਫ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੰਬਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸੰਗ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 3 ਤੋਂ 4 ਮਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਮਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 50 ml ਸੁਬਹ 50 ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ 100 ml ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੌਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 20-50 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ml ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪੇ ਪੀਏਗਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਖਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਖਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਣ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਫ ਗੋਲਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੀਟਰ ਕੈਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ
क्लैपिंग ले जरा क्लैपिंग कर दो हसन रजा अंसारी साहब तशरीफ लाते हैं जी अपनी शेयरिंग करेंगे चंद मिनट की उसके बाद देंगे अस्सलाम वालेकुम हसन रजा अंसारी हमवा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मुल्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं मलिक आसिफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये महफिल सजाई और आप दोस्तों को इनवाइट किया और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने गर्मी में और इतने मसरूफियत से आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये महफिल सजाने का एक मकसद था कि ये हमने एक पॉइंट शुरू किया था कि हमवा मॉडल शॉप्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मॉडल शॉप है जो कि मलिक आसिफ साहब ने यहाँ पर आज बना के उसका इफ्तिताह भी कर दी है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा मलिक आसिफ साहब को, फैसल साहब को कि इन्होंने हमारा साथ दिया और इसमें कामयाब हुए। तो आसिफ साहब से मेरा ताल्लुक जो है ना वो 2011 से है, तो तकरीबन ये 14 साल बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा टाइम भी आया, मुश्किलात भी आई, वो हमने मिल के फेस की। और आसिफ साहब शुरू से यही था कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि जो एक दफ़ा लेके जाए वो बार बार उसको दोबारा मांगे। होता क्या है कि जो बंदा जो भी प्रोडक्ट यूज करता है उसे उसका फायदा होता है, तो जो बेचने वाला होता है उससे भी खुशी होती है, उसे भी फख्र महसूस होता है। तो हमने जो ये स्टेप लिया तकरीबन कोई 6 माह पहले हमने प्लानिंग की इस शॉप को बनाने की, और उसके ऊपर जारी बात है मेहनत हुई, उसकी डिजाइनिंग हुई, उसके ऊपर पैसा लगा। वो बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो फार्मर हजरात हैं उनको एक पता चले कि इस शॉप पे ये कंपनी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगी। और फिर क्या होगा कि जब हम आपको बताएंगे, हमारे नुमाइंदे आपको बताएंगे, तो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप रेगुलर यहाँ से लेना शुरू कर देंगे। जैसे हमने ये रखा कि हमवा फार्मास्यूटिकल्स कदम ब कदम फार्मर्स के संग, और हर वक्त हम फार्मर्स के साथ खड़े, कोई भी क्लेम होता है आसिफ साहब इसके गवाह हैं, हम फार्मर से डायरेक्ट बात भी करते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं वो सुनते भी हैं, उनको हल भी करते हैं। काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि अगर आप बेसिक चीजें कर लेंगे कि अगर हमने सफर करना है, गाड़ी पे जाना है, उसमें पेट्रोल पूरा करना है, उसका पानी चेक करना है, उसका हवाएं चेक करवानी, तो हमारा सफर खुशगवार होगा। अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे तो हम रास्ते में तांग हो जाएंगे, हमारा सफर खुशगवार नहीं होगा। गाड़ी पंचर हो गई, हवा कम है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो इस तरह के मसाइल आते हैं। तो अगर हम अपनी चीजें पूरी करेंगे, बेसिक डिवर्मिंग टाइम पे करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, फिर ये जैसे विटामिन हमने दिए हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं है, तो ये जानवर को ग्रोथ देता है, भूख लगाता है, और जो भूख खाएगा वो उसके जिस्म को लगेगा। तो ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं, मोस्टली कंपनीज पेस्टिसाइड में करती हैं, वंडा वाली कंपनीज करती हैं, ताकि हमारे फार्मर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सके और वो फार्मर उसका यूजर बन सके। तो बाकी यह है कि आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब दोस्तों का कोई भी सवाल अगर हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। अब यह है कि हमारी ये फ्रेंचाइज है, ये इंशाल्लाह हमारा प्लान है हर तहसील लेवल पे, ये हरनोली पिपला तहसील है, पिपला में ये पहली शॉप बन गई है, उसके बाद मियाँ वाली है, ईसा खेल है, मूसा खेल है, जितने भी तहसीलें होती हैं, फिर आगे लोग खुद ब खुद राब्ते करते जाते हैं, जी यहाँ पर भी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या डीलरशिप चाहिए, तो हम उसको इंशाल्लाह आगे भी फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम।